I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss paper 1 of preliminary exam paper of Jammu and Kashmir Prosecution Officer 2022. So let's move on to the questions. Question number 1 is Article 355 of the Constitution imposes a duty on the Union to protect the states against war या फिर external aggression, internal disturbance, armed rebellion. कौन कौन से हैं? वो है external aggression and internal disturbance. So 2 and 3. So here is 2 and 3. D is the answer. Next is 2. Under Article 299 of the Indian Constitution, a contract made with the government must be executed by the person authorized by the President or Governor. ये हो सकता है जी. Executed by such person on behalf of President or Governor. ये ठीक है. Express to be made by the President or Governor. ये भी हो सकता है. तीनों ही हो सकते हैं. वो खुद भी कर सकते हैं, किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं, या उनके बिहाफ पे ऑथराइज पर्सन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द गवर्नमेंट. ठीक है. तो 1, 2, 3 इसमें आंसर हो जाएगा. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 3. In which of the following landmark judgment it was held by the Supreme Court that free under Article 301 Indian Constitution does not mean free from taxation. Only such taxes are discriminatory in nature are prohibited by Article 304A. It follows that levy of non-discriminatory tax would not constitute an infraction of Article 301. So कौन सा केस था ये? अतियाबारी टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, या फिर ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या फिर जिंदल स्टेनलेस स्टील या फिर स्टेट ऑफ हरियाणा 2006, या फिर सेम जिंदल स्टेनलेस स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2017. इट वाज ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट राजस्थान लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. बी इज द आंसर. Next is 4. 10% reservation of economically weaker section EWS in education and public employment was introduced by which of the following constitutional amendment? It was the 103rd Amendment 2019. B is the answer. This is 5. It isn't the purpose of grace marks to allow reserved category candidate to switch over to general category held in यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुकेश कुमार मीना, या फिर नील ऑरलिस नूनेस ओबीसी रिजर्वेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सतीश महादेव काले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस राजकुमार. इट वाज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मुकेश कुमार मीना. 2022 रिसेंट जजमेंट्स में पूछा गया था ये. सो ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द JNK Reorganization Act 2019 provides for the deletion of which of the following entries in the table of fourth schedule of the Constitution of India. देखिए फोर्थ शेड्यूल क्या है? सीट्स है किसी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसमें जो है एंट्री 21 को डिलीट कर दिया गया है, तो उसमें सी आंसर रहेगा. और इसके लिए आप देख सकते हैं JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 8, वहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है. नेक्स्ट इज 7. The JNK Reorganization Act provides for allotment of seats to specified incumbent members of Council of States of erstwhile JNK state in the legislature of UT of JNK under which of its schedule? First, second, third, fourth. ये है फर्स्ट शेड्यूल में. A is the answer. और इसके लिए देख सकते हैं आप सेक्शन 9 ऑफ JNK Reorganization Act. Next is 8. What is the number of seats kept vacant in Legislative Assembly of the UT of JNK? 24, 15, 36, 21. 24 है ये. ए इसमें आंसर रहेगा. तो टोटल सीट्स कितनी है इसमें? 107. कहाँ मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 14 के सब सेक्शन 4 में ऑफ JNK Reorganization Act. Next is 9. In the year 2019, the total population for the purpose of computing proportional representation of scheduled castes and tribes in the Legislative Assembly of UT of JNK is construed with reference to dash. Population of JNK in 1947, या फिर 1951 सेंसस, 1961 सेंसस, 2011 सेंसस. तो रिसेंट का ही लेंगे. 2011 सेंसस को मेंशन किया हुआ है. कहाँ पर? सेक्शन 14 के सब सेक्शन 7 की
एक्सप्लेनेशन के प्रोवाइजो में इन JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट इज 10, what is the number of women who may be nominated to the legislative assembly of the UT of JNK? तो जो LT गवर्नर है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो कितनी वुमेन नॉमिनेट कर सकते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? 2579, 2 A is the answer, mentioned in section 15 of JNK Reorganization Act. Next is 11, the quorum to constitute a meeting of the legislative assembly shall be the greater of 10 member और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ LA, या फिर 15, 20 या फिर 20 मेंबर्स एंड 1/8, 10 मेंबर और 1/10। A इज द आंसर। कहाँ मेंशन है? इन सेक्शन 25 ऑफ JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। नेक्स्ट इज 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 ट्राइफरकेटेड द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ JNK या फिर बाइफरकेटेड द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ JNK। बाइफरकेट कर दिया। देखिए ये जो ऐसे था ना, तो इसको जो है अब ये कश्मीर, ये जम्मू, ये लेह लद्दाख ऐसे कर दिया है ना, तो बाइफरकेट किया गया है, तो ये 1 वाला ठीक है। फिर राजौरी डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बिल्कुल ठीक है। डोडा डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये रॉन्ग हो गया। तो 2 और 3 इसमें करेक्ट हैं, तो 2 और 3 देखिए ये रहा, B इज द आंसर। और एक कहाँ मेंशन है इसके लिए देखिए आप सेक्शन 11 ऑफ JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट एंड शेड्यूल 2 देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज 13, अब पर्टिकुलर सब प्रोविजंस हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये सेक्शन 79, 81, 75, 65। ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को ना समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहे हैं, बिकॉज देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहले आप देखिए ये है फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, सेक्शन क्या लिखे हुए हैं? 16, 24, 54, ओके। फिर ये देखिए ये थर्ड शेड्यूल क्या लिखा हुआ? सेक्शन 14 का 5। फिर ये सेकंड शेड्यूल 11 का 1। फिर ये फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9, ठीक है ना, UT ऑफ JNK मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अब इसमें जो है सेक्शन ये 79, 81, 65। अब ये देखिए सेक्शन 65 क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है 79, 75, तो 75 किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए। फिर 79 क्या है? एडवोकेट जनरल। 81 क्या है? ऑथराइजेशन एक्सपेंडिचर ऑफ UT ऑफ लद्दाख। अब इसमें शेड्यूल का क्या रिलेशनशिप है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं बनाया, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज 14, अब ये लैटिन मैक्सिम्स हैं और इनको बताना है क्या कहते हैं। ये एक्शियो पर्सोनलिस मोरितुर कॉम पर्सोना, पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, एक 1 का हो गया D। फिर एग्जामिनेशन D बैन S, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर हियरिंग इन अर्जेंट केसेस। फिर एक्टस क्यूरी नैमिनम ग्राविट, एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रिडाइस नो मैन, कोर्ट शैल नॉट हार्म अ पर्सन। 3 का हो गया B, एक्स डेबिशियो जस्टिसाई, रिकॉग्निशन ऑफ अ डेट दैट justice delivery system owes to a litigant to correct an error in a judicial dispensation, ठीक है, इसका मतलब होता है ए जुडिशियल डेट। तो क्या बन गया इसमें फिर? DCBA, तो 1 का DCBA ये रहा, D इज द आंसर। नेक्स्ट इज 15, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, बताना है क्या इसमें विच इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है, ए सूट इन विच द प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू रिलीजियस और कास्ट, इट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, बिल्कुल ठीक है। A suit to establish one's right to an office in a temple and to honor and privileges attached to said office will lie in a civil court, ये बिल्कुल ठीक है। तो both are true, A is the answer। सूट और सिविल नेचर के बारे में कहाँ बात की गई है? इन सेक्शन 9 ऑफ CPC। नेक्स्ट इज 16, मैच द फॉलोइंग प्रपोजिशन इन पार्ट ए, मैच करना है। तो अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, ये कहाँ पर आता है? ऑर्डर 16A में, ऑलराइट।
ऑर्डर 16 किसके लिए है? विटनेसेस के लिए। तो विटनेस से उसके रिलेट कर सकते हो अगर मान लो आपको नहीं भी पता हो तो। सूट कंसर्निंग फैमिली मैटर्स 32A। डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी कहाँ पर है? 22 में। कमीशंस 26 में। तो क्या बन गया इसका? CADB। तो CADB ये रहा, A इज द आंसर। नेक्स्ट 17, अब फिर से वही बताना है करेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 है, एन ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट विच पास अ डिक्री टू अ कोर्ट विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट द डिक्री टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर इज कॉल्ड प्रीसेप्ट। ये हो गया रॉन्ग। प्रीसेप्ट के बारे में कहाँ लिखा हुआ? सेक्शन 46 में। फिर है, प्रीसेप्ट इज नॉट एन ऑर्डर ट्रांसफरिंग डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिक्री ट्रांसफर नहीं करते ना, सिर्फ दूसरे कोर्ट को बोलते हैं कि भाई आप इसको अटैच कर लो प्रॉपर्टी को। ओके। गार्निशी, गार्निशी जो नोटिस है कहाँ होता है? ऑर्डर 21 एंड रूल 46A में। अब फिर इसमें 46 भी आ जाता है, फिर ऑर्डर टू गार्निश। अभी कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्डर 21 पूछ रहे हैं और लिख दिया यहाँ पर प्रिसेप्ट के बारे में क्वेश्चन, जो कि सेक्शन 46 है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, C इज द आंसर। नेक्स्ट 18 में मैच करना है फिर से। द वर्ड कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे इन एन एनेबलिंग प्रोविजन एंड नॉट अ डायरेक्शन टू प्रोसीड एक्स पार्टे। ये केस है दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। A1 का हो गया B। फिर देर आर 5 प्रिंसिपल्स विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पंच सदाचार फॉर आवर कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग इक्विटी जुरिडिक्शन इन अपॉइंटिंग रिसीवर। ये केस था संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन कमीशन कोर्ट, इलेक्शन ट्राइब्यूनल कोटा। फिर है द केस वेयर द कोर्ट highlighted the concern over delayed pronouncement of judgment after argument were over. This was Krishnaswamy Chetty versus Thangavelu Chetty. D हो गया। फिर है 4, if a petition filed under Article 226 is dismissed on merit, filing a petition under Article 32 for the same relief on the grounds is barred by res judicata. केस कौन सा है ये? ये केस है अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो क्या बन गया इसका? BCDA। तो BCDA ये रहा, D इज द आंसर। नेक्स्ट इज 19, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर वर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन है, बताना कौन से करेक्ट हैं। तो असर्शन है इसमें, टेम्परेरी इंजंक्शन में बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ पार्टी एंड नॉट अगेंस्ट अ स्ट्रेंजर। ये बिल्कुल ठीक है जी, बताना पड़ेगा ना कि किसके खिलाफ ले रहे हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। प्रोविजन का है ऑर्डर 39 में। तो इसमें पार्टी जो है इट इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी, जो भी कोई काम कर रहा है। अब मान लो कि प्रॉपर्टी का मैटर है और ए जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है प्रॉपर्टी बी की, तो बी इंजेक्शन लेके आएगा नॉट ओनली अगेंस्ट ए बट ऑल्सो अगेंस्ट एनी पर्सन हु एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए। मान लो जेड को बोल देगा तू जाके डिस्ट्रॉय करा, तो उस पर भी इंजेक्शन लगेगी वो, ठीक है ना। टेम्परेरी इंजेक्शन एक्ट इन पर्सोनम एंड नॉट इन रैम, ये बिल्कुल ठीक है। ये रीजन हो गया इसका, तो ये both are correct. R is the correct reason for A. C is the answer. Next is 20. Part A, Part B है ये। Period of the effect of attachment under pursuance of the precept under section 46 CPC कितना रहता है? For not more than 2 months. तो 1 का C रहेगा। फिर no suit shall be instituted against government until expiration of 2 months from the date of notice. कहाँ प्रोविजन है? सेक्शन 80 ऑफ CPC में। फिर है a decree against government can be put into execution if it remains unsatisfied for a period of 3 months from the date of decree, ठीक है। if no time is prescribed, the period within which the amendment is to be carried out, that is 14 days, order 6 rule 18 में मेंशन है ये। तो क्या बन गया फिर इसका? CDAB। CDAB ये रहा, D is the answer. Next is 21. Consider the following statement. Identify the incorrect statement. Leave of the court is mandatory for the next friend to enter into any compromise on behalf of the minor. This is correct. कहाँ mention है ये? Order है ये 32 and rule is 7. फिर a woman can be arrested in execution of money decree between sunrise and sunset.
मनी डिक्री में वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, मेंशन सेक्शन 56 CPC। तो ये रॉन्ग हो गया। फिर इफ द डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम हिज रेजिडेंस द समन्स कैन बी सर्व्ड ऑन एनी एडल्ट फैमिली मेंबर इन द हाउस वेदर मेल और फीमेल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मेंशन इन ऑर्डर 5 रूल 15 ऑफ CPC। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जम्प्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम लायबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये रॉन्ग हो गया। कहाँ मेंशन है ये, मेंशन इन सेक्शन 61 ऑफ CPC। तो फिर 1 and 3 करेक्ट है, 2 and 4 इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा फिर, 2 and 4, C इज द आंसर। इनकरेक्ट पूछा है ना। नेक्स्ट 22 असर्शन रीजन आ गए फिर से। कंसेंट ऑफ द पार्टीज कैन नॉट कन्फर नो टेक अवे जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये ठीक है। फिर इसका रीजन क्या है, पार्टीज कैन एग्री टू कन्फाइन द जुरिडिक्शन टू अ पर्टिकुलर कोर्ट व्हेन 2 और मोर कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन। ये बिल्कुल ठीक है। तो रीजनिंग इसकी क्या ठीक हुई, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज एन एक्सेप्शन टू ए, ये बिल्कुल ठीक है। ए इसमें आंसर हो जाएगा। केस कौन सा आता है इसमें, हकम सिंह वर्सेस गैमन इंडिया, पढ़ा होगा आपने, जुरिस्डिक्शन पर ही बड़ा फेमस केस है। नेक्स्ट इज 23, फिर अदर्शन रीजन है फिर से। अदर्शन है द प्ली ऑफ आरजे मे बी वेव्ड बाय द पार्टी टू अ सूट, ये ठीक है, बिकॉज जो दूसरा पार्टी है वो तो ऑब्जेक्शन करता है ना कि बीच में तो रेस जुडिकाटा लगेगा, तो वो वेव कर सकते हैं। फिर अ प्ली ऑफ आरजे डज नॉट अफेक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है। तो बहुत करेक्ट हो गए और आर इज एन एक्सप्लेनेशन हो गई, तो बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है आरजे का, 11 इन CPC। ओके, नेक्स्ट इज 24, with regard to PP which of the following is incorrect? Only central government shall after consultation with the high court appoint a PP, not only central government, state government और central government कर सकते हैं। तो ये wrong हो गया। कहाँ मेंशन है ये, इन सेक्शन 24 of CRPC। फिर a session judge shall in consultation with the district magistrate prepare a panel of the names person who are fit to be appointed as PP और APP for the district। अब ये वाइसा वर्सा कर दिया, यहाँ आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज, तब ये ठीक होता। 24 में ही मेंशन है, 24 के सबसेक्शन 6 में इन CRPC। तो बोथ आर इनकरेक्ट, सी इसमें आंसर हो जाएगा। अब ये 24 हो गया है 18 इन BNSS। Next is 25, an assistant session judge is authorized in law to pass which of the following? Any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for life, या फिर any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment for life for a term exceeding 10 years। ये बिल्कुल ठीक है, मेंशन इन सेक्शन 28 सबसेक्शन 3। अब BNSS में से जो है ये असिस्टेंट सेशन जज को हटा दिया गया है, अब सीधे आप लगेंगे एडिशनल सेशन जज, तो बी इसमें आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज 26, which of the following persons may be charged and tried together under section 223 CRPC? Persons accused of different offences committed in the course of different transactions। सेम ट्रांजेक्शन वाले होंगे ना, डिफरेंट वाले नहीं होंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। The persons accused of same offence committed in the course of same transaction, ये 223 के क्लॉज ए में लिखा हुआ है, तो ये ठीक है। फिर है पर्सन accused more than one offence of same kind within the meaning of section 219 committed by them jointly within the period of 24 no 12 months, तो ये भी wrong हो गया। फिर है पर्सन accused of an offence और पर्सन accused of abatement of attempt to commit such offence, choose the correct answer। तो ये करेक्ट है। कहाँ मेंशन है ये, क्लॉज बी है ये 223 में ही, तो 2 and 4 इसमें आंसर है, ये रहा बी इज द आंसर। अब ये जो है 223 हो गया है सेक्शन 246 इन BNSS और ये 219 हो गया है 242 इन BNSS। ओके, नेक्स्ट इज 27, when the court of session passes a sentence of death the proceeding may be submitted to a high court and sentence may not be executed unless it is confirmed by the high court। ये बिल्कुल ठीक है।
कहाँ मेंशन है? सेक्शन 366 के सबसेक्शन 1 में इन सीआरपीसी। फिर द कोर्ट पासिंग सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल कस्टडी अंडर अ वारंट। दिस इज ऑल्सो मेंशन इन सेक्शन 366 सबसेक्शन 2। ठीक है ना? तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो सी इसमें आंसर हो जाएगा। अब ये 366 हो गया है सेक्शन 407 इन BNSS। नेक्स्ट 28, a person convicted or acquitted not to be tried for the same offense। Observe the statement below। क्या बोलते हैं इसको? ऑट्रोफोएस एक्विट एंड ऑट्रोफोएस कॉन्विक्ट। सेक्शन कौन सा है ये? 300A इन CRPC, है ना? जो कि अब हो गया है सेक्शन 337 इन BNSS। बाकी कंटेंट सेम है। तो a person acquitted or convicted for any offense may be afterward tried for distinct offense but only with the consent of central government। ये wrong है। एक बार कन्विक्ट एक्विट हो गया फिर नहीं कर सकते उसको। फिर सेकंड स्टेटमेंट है a person convicted of any offense constituted by any act causing consequences which together with such act constituted a different offense from that of which he was convicted may be afterward tried for the last mentioned offense if the consequences had not happened but were known to the court, no, but were not known to the court have happened at a time when he was convicted। so ये भी wrong हो गया, तो कोई भी ठीक नहीं है इसमें। तो डी इसमें आंसर आएगा, नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट इज 29। अंडर सेक्शन 437 of CRPC, bail may be granted in non-bailable offences even if the accused had been previously convicted of an offence punishable with imprisonment for 7 years and the accused is 17 year of age। now 17 year नहीं 16 होना चाहिए। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 437 के सेक्शन 1 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो 1 में। फिर है एक्यूज पर्सन में बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बी विटनेस, ये बाय विटनेस होना चाहिए। विटनेसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आफ्टर प्रोवाइडिंग एंड नहीं एन आना चाहिए। अंडरटेकिंग टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस गिवन बाय द कोर्ट। ये बिल्कुल ठीक है। ये फिर से वही सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2 में ही प्रोवाइजो 3 है ये। ओके। फिर है विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नो, हियरिंग तो देनी ही देनी है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी। फिर से वही ये प्रोवाइजो 4 में लिखा हुआ है सेक्शन 1 के क्लॉज 2 में ही। ओके, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसमें ठीक कौन सा है? बी। बी इज़ द आंसर। और अब जो है ये सेक्शन 437 हो गया है 480 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। Next is 30. Which of the following statements are correct in context of death penalty? The constitutionality of death penalty was challenged for the first time in Jagmohan Singh versus State of UP 1973। This is correct। फिर है the constitutionality of death penalty was referred to a constitution bench in Bachchan Singh versus State of Punjab। This is also correct। और इसमें ये 4:1 की जजमेंट थी। जस्टिस PN भगवती डिक्लेयर डेथ पेनल्टी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन बच्चन सिंह केस। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये जो डिसेंटिंग जज थे वो यही थे, PN भगवती। फिर है द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्राइन वाज इल्यूसिडेटेड इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस वर एक्सप्लेन्ड इन मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड क्राइम एंड क्रिमिनल टेस्ट वाज एडवर्टेड इन संतोष कुमार सतीश भूषण बारियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2009 की जजमेंट है ये, तो ये भी ठीक है। क्राइम एंड क्रिमिनल टेस्ट जो है इसको और एलोबरेट कहाँ किया गया? फिर शंकर किशन राव खड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 में, ठीक है ना। और बाद में फिर 2017 में फिर आया मोफी खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो चारों ही ठीक है। ABCD आर करेक्ट। सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 31। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर IPC।
The right of private defense commences as soon as reasonable apprehension arises and is conterminous with the duration of the apprehension. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है a mere reasonable apprehension is not enough to put the right of self defense into operation. तो reasonable apprehension नहीं, और फिर क्या होगा, तो ये wrong हो गया. Person under assault cannot be expected to modulate his defense with arithmetical exactitude. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है in private defense the force used by the accused ought not to be wholly disproportionate for the protection of the person. Choose the correct option. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. तो इसमें फिर ठीक कौन से हुए, करेक्ट ऑप्शंस पूछे हुए हैं. तो ए सी एंड डी, ये रहा ए सी डी इज द आंसर. नेक्स्ट 32. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर आईपीसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहाँ डिफाइन है, इन सेक्शन 120 ए पनिशमेंट बी में इन आईपीसी. अब हो गया सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस. कन्विक्शन ऑफ अ सिंगल पर्सन फॉर एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज बैड इन लॉ. बिल्कुल ठीक है. ये इसके लिए आप केस देख सकते हैं, तपन दास है वैसे तो ये, तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 जजमेंट है ये. और आप देख सकते हैं परवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 की जजमेंट है ये. ठीक है. फिर द लॉ ऑन कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज लीस्ट सिस्टमैटिक एंड मोस्ट इरेशनल ब्रांच ऑफ इंग्लिश पिनल लॉ. ये भी ठीक है. फिर सेक्शन 120A और 120B ऑफ आईपीसी हैव ब्रॉट द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन इंडिया इन लाइन विद द इंग्लिश लॉ. ये ठीक है. The offense of criminal conspiracy is an exception to the general law that regard that intent alone does not constitute crime. बिल्कुल ठीक है. तो all are correct. B इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 33. मैच करना है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं ये. ऑफेंस अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई थी ये 1971 में. मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस एंड इंसिडेंटल मैटर्स 2003. हेट स्पीच पर 2017 में. कैपिटल पनिशमेंट पर 1966. 498 AIPC अब हो गया है 85 86 इन BNS. इस पे आई थी रिपोर्ट 2009 में. तो क्या बन गया इसका, 35421. B is the answer. Next is 34. Which of the following is true? There is distinction between taking and allowing a minor to accompany a person. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है the two expressions taking and allowing are not synonymous. ये भी ठीक है. The two can be regarded as not meaning the same thing for the purpose of section 361 of IPC. 361 क्या है, किडनैपिंग. ठीक है. The two can be regarded as same thing for the purpose of section 362. 362 क्या है, abduction. तो ये रॉन्ग हो गया. तो 1 2 3 आर करेक्ट. तो इसमें सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 35. कैपिट लुपिनम मीन्स क्या होता है, ए डेंजरस क्रिमिनल एज डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी हु कैन बी किल्ड विदाउट द पेनल्टी. मतलब शूट ऑन साइट क्रिमिनल ऐसे होते हैं ना, तो दैट इज उसको डिक्लेयर कर देते हैं कैपिट लुपिनम. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 36. Observing that death sentences are most often imposed by trial court in retributive sense, the Supreme Court has issued a set of practical guidelines to ensure that the mitigating circumstances of the accused are properly considered at the trial stage itself. In कौन से केस में, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, नरेश या स्टेट ऑफ यूपी, मुकेश कुमार स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली, या फिर राम सिंह. ये मनोज वर्सेस मध्य प्रदेश है. ए इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 37. एन इंटरिम ऑर्डर द कोर्ट अर्ज द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रेफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर अंडर द सेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी व्हाइल इट वाज अंडर रिकंसिडरेशन. ये क्या था, उन सेडिशन लॉ पे. तो ये केस थे SG वोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड आइटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दोनों ही थे ये. डी इज द आंसर.
ये मैंने पहले 2022 में ना ये वीडियो बनाई थी लैंडमार्क जजमेंट्स की, तो मैंने वहाँ पर भी चीज़ डिस्कस की हुई है। वीडियो मिल जाएगी आपको अभी भी। Next is 38. This court has time and again deprecated the use of two-finger test in cases alleging rape and sexual assault. The so-called test has no scientific basis. It instead re-victimize and re-traumatize women. A two-finger test must not be conducted. The test is based on incorrect assumptions that a sexually active woman cannot be raped. Nothing can be further from the truth, the bench observed while pronouncing the judgment in कौन सा केस था ये? स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, फिर स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस तुकाराम, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अम्बरीश, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस क्रांति सिंह। ये था स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, पांडव राय। ए इज द आंसर। इसमें जो है टू फिंगर टेस्ट को जो है बैन कर दिया गया था। और इस कोर्ट जो टू फिंगर टेस्ट था ये टीएफटी, इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। कौन से केस में? लिल्लू एट राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 की जजमेंट है, ठीक है ना। और शैलेंद्र राय की जजमेंट थी 2022 की। रिसेंट में पूछे हुए हैं सारे जजमेंट्स। नेक्स्ट 39. Marrying another woman by husband during existence of his first marriage is something which is most likely to cause trauma and grave injury to mental health of first wife unless it has been done with the consent of the first wife. तो क्या होती है? क्रूअल्टी होती है अंडर 498 ए आईपीसी। कंसेंट ऑफ वुमन इज नॉट रिक्वायर हेल्ड इन अतुल वर्सेस अतुल सन ऑफ राजू डोंगरे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ए एंड सी इसमें ठीक है, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। ये भी अतुल सन ऑफ राजू डोंगरे 2022 की जजमेंट है, 2022 की। रिसेंट में पूछे हुए सारे, तो मतलब जो रिसेंट जजमेंट्स आई हैं क्रिमिनल लॉ पे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे, सारी करनी पड़ेंगी आपको याद। नेक्स्ट इज 40. Proposition under the Evidence Act are statement is genus, admission is species, confession is subspecies। ये बिल्कुल ठीक है जी। फिर है स्टेटमेंट एडमिशन, फिर है स्टेटमेंट एंड एडमिशन आर स्पीशीज एंड कन्फेशन इज नो, ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट एंड एडमिशन आर जीनस एंड कन्फेशन इज नो, रॉन्ग है। तो 1 इसमें करेक्ट है, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 41. Which statement is correct as per provision under section 133 read with section 114A of illustration B of Evidence Act? The accomplice shall be competent witness against an accused person, ये 133 में लिखा हुआ है। फिर है conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice, ये भी ठीक है। फिर है an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particular, ये 114 के इलस्ट्रेशन बी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑल आर करेक्ट, डी इज द आंसर। अब जो है ये 133 हो गया है 138 इन बी एस ए, ठीक है। एंड ये 114 हो गया है 119 इन बी एस ए। दिस इज 42. अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग इज परमिटेड विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू द विटनेस, या फिर विदाउट प्रूविंग द सेम बट ओनली आफ्टर शोइंग, या फिर आफ्टर प्रूविंग द सेम बट बिफोर शोइंग, आफ्टर प्रूविंग सेम एंड शोइंग द सेम टू द विटनेस, ये रॉन्ग है। विदाउट प्रूविंग एंड विदाउट शोइंग होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ए इसमें आंसर हो गया। अगर मान लो करना है कॉन्ट्राडिक्ट, तो हम ये होगा विदाउट प्रूविंग बट ओनली आफ्टर शोइंग द सेम टू द विटनेस। 145 हो गया है 148 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next is 43. The police arrested B in village and left him in the custody of certain villagers and went to finalize report. The accused confessed his guilt to those villagers during that period. The confession by B is a not admissible as it is extrajudicial in nature, या फिर admissible even though it is extrajudicial in nature because it was made to the villager who were deputed by the police officer. Not admissible as it was while in custody of police officer, या फिर एडमिसिबल बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग कन्फेशन बी वाज नॉट अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। देखिए कस्टडी जो पुलिस की थी उसने सर्वेलेंस लगा दी, दैट इज़ इनफ फॉर द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, चाहे वो वहाँ पर प्रेजेंट हो या फिर ना हो, तो वो नॉट एडमिसिबल रहेगा। सी इसमें आंसर रहेगा। इसके लिए आप एक केस देख सकते हैं, एम्परर वर्सेस मुसम्मद जगिया
1938 की जजमेंट है पटना हाई कोर्ट की, ठीक है। नेक्स्ट इज 44, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज। A communication remains privileged communication even after the dissolution of marriage by divorce, बिल्कुल ठीक है। Communication does not remain privileged after dissolution, ये wrong हो गया। Communication is not privileged in proceedings in which one married person is prosecuted for any crime against the other, ये भी ठीक है। तो नोट करेक्ट कौन सा हुआ? बी, बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा था ये? 122 था ये पहले एविडेंस एक्ट में, अब हो गया है 128 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next is 45. The question is whether a given letter is in writing of a merchant in London, B is a merchant in Calcutta, who has written letters addressed to A and received letters purporting to be written by him. C is B's clerk whose duty was to examine and file B's correspondence. D is a broker to whom B habitually submitted the letters purporting to be in handwriting of A for the purpose of advising him thereon. तो कौन कौन से रेलेवेंट है? ओपिनियन ऑफ बी सी डी तीनों के ही रेलेवेंट हो जाएंगे, डी इसमें आंसर हो जाएगा। ये जो है सेक्शन 46 में इलस्ट्रेशन है, जो कि अब हो गया है 41 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एंड सेम क्वेश्चन अभी यूपीएससी सीबीआई एपीपी 2025 के एग्जाम पेपर में आया, जो कि हुआ था 11/1/2026 को, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जीएनके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का जो लेवल है दैट इज क्वाइट गुड लेवल, यूपीएससी के लेवल के एग्जाम पेपर बनाते हैं, ये इजी नहीं आता। नेक्स्ट इज 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एविडेंस नॉट बी रिगार्डेड एज हियरसे। ए न्यूज आइटम विच शोड दैट द डिसीज, देखिए न्यूज है कोई भी तो क्या हो गया, हमेशा दैट विल बी ऑलवेज हियरसे। एविडेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट बाय विटनेस हु वाज नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं था, दैट इज ऑल्सो हियरसे। The testimony of the witness in murder case who heard many villagers, अब ये देखिए heard मतलब hear से। Testimony of a person who saw the pitiable condition of a young woman in her in-laws home where she met her death, ये तो देखा ही है ना उसने, तो ये hear से नहीं होगा, तो D इसमें आंसर हो जाएगा। Next is 47, A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belong to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of sale he had no title. As per Section 115 Evidence Act, A must be allowed to prove his want of title, या फिर may be allowed या फिर must not be allowed to prove his want of title. C is the answer. यही तो एस्टोपल होता है कि भाई एक बार उसने जो रिप्रेजेंटेशन कर दी तो बाद में उससे वो मुकर नहीं सकता, ठीक है ना। अब हो गया है 121 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next is 48. A is accused of a crime committed by him at Calcutta. He produces a letter written by himself and dated at Lahore on that day and bearing the Lahore postmark of that day. As per Section 21 of Evidence Act, which of the following is admissible? The statement in the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under Section 11(2) या फिर 92 या फिर 32 का 2, 74 का 2। देखिए डी है कहाँ आती है? इन सेक्शन 32, तो सी इसमें आंसर हो जाएगा, है ना। एज इफ ए वर डेड इट वुड बी एडमिसिबल, तो वहीं पर ही होगा ना। ये इलस्ट्रेशन है सी इन सेक्शन 21, जो कि अब ये 21 हो गया है 19 इन BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो 32 था DD ये हो गया है 26 इन BSA। Next is 49. Which of the following is correct answer? Statement A है, statement made by a person to whom party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions, बिल्कुल ठीक है। This is section 18 of Evidence Act। फिर है an admission is a statement one oral documentary contained in electronic form। देखिए ये क्या है, amendment का साइन है ये, और ये as it is section 17 यहाँ पर कॉपी कर दिया इन्होंने, ये चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। Anyways, in civil cases, no admission is relevant if it is made up either upon express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances for which court can infer that the parties agreed together that the evidence of it should not be given. Choose the correct answer.
तो ये भी ठीक है, ये सेक्शन 23 ऑफ एविडेंस एक्ट है। तो ए बी सी करेक्ट हो गए, सी इज़ द आंसर। अब ये 17 हो गया है 15, 18 हो गया है 16 एंड 23 हो गया है 21 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट इज 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट। ए टोट इज ऑलवेज अ सिविल रॉन्ग, ये ठीक है। ये मेंशन किया हुआ है इन डेफिनेशंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एम में। प्रॉमिसरी नोट इंक्लूड्स एन इंस्ट्रूमेंट पेबल एट साइट, ये क्लॉज के है। ट्रस्ट इंक्लूड्स बेनामीदार, नो, नोट नोट इंक्लूड आएगा, ये रॉन्ग हो गया। बॉन्ड इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 1 एंड 2 इसमें करेक्ट हो गए, तो सी इसमें आंसर हो गया। बॉन्ड वाला 2 डी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 51, subject to the provisions of limitation act, every suit instituted after the prescribed period shall be dismissed only if limitation has been set up as defense, या फिर although limitation has not been set up as defense। सेक्शन 3 यही तो कहता है लिमिटेशन एक्ट का, तो बी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन एक्ट। Any claim by way of a set of shall be treated as a separate suit, yes, need not be, ये wrong हो जाएगा, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, तो 1 ठीक है इसमें। Be deemed to have been instituted on the same date as a suit in which set off is pleaded, या फिर be deemed to have been instituted as a suit on the date when the set off is pleaded for the first time। 3 इसमें ठीक रहेगा, फिर से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, तो इसमें ये 4 वाली रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 एंड 3 इसमें ठीक हैं, तो पूछा हुआ विच अबाउट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 1 एंड 3 बी इज़ द आंसर। कहाँ मेंशन किया हुआ है ये, इन सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी में। ओके, बी इसमें आंसर है। नेक्स्ट इज 53, वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट ए न्यू डिफेंडेंट इज एडिड विदाउट रीजन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट टू हिम ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ए सूट, द सूट शैल एज रिगार्ड हिम be deemed to have been instituted on the date he first appeared in the person or through agent to defend himself, या फिर to deem have been instituted when the suit was originally filed, या फिर he was so made a party, या फिर on the date when the notice of suit is received by him, when he was so made a party। C is the answer। कहाँ मेंशन किया हुआ है ये मेंशन किया हुआ इन सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। Next is 54. Consider the following statement with respect to Limitation Act. For a written and signed acknowledgement of a liability to result in a fresh period of limitation, it must not omit to specify the exact nature of the right, ये बिल्कुल ठीक है। Must not aver that the time of enjoyment of right has yet not come, ये wrong है। फिर है it may be accompanied by a claim of set off, set off का उसमें अदर चीज़ नहीं मेंशन होनी चाहिए ना, ये wrong हो गया। इट मे बी एड्रेस टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल टू द राइट, हाँ उसके एजेंट को भी कर सकते हैं, ये है ना, एजेंट को हो सकता है। कहाँ मेंशन है ये, इन सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, तो इसमें 1 एंड 4 आर करेक्ट, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 55, consider the following statement with respect to the Limitation Act 1963 for obtaining acquisition of an easement by prescription. In case of access to light for any building, it must have been peaceably enjoyed within an easement and as of right without interruption for a specified number of years। बिल्कुल ठीक है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, 20 ईयर्स। कहाँ मेंशन है, सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। इन केस ऑफ एनी वे, फिर से वही सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है। In case of light, it must have been enjoyed there whether intermittently or not for a period of specified, ये wrong हो जाता है। फिर है in case of any way it has been claimed by any person for a specified number of years, तो ये दोनों ठीक हैं 1 एंड 2, तो ए इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 56, in computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at the sale in execution of a decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall not be excluded।
सेट असाइड वाला शैल बी एक्सक्लूडेड होगा, तो ये रॉन्ग हो जाता है। कहाँ मेंशन है ये? इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। फिर है द टाइम ड्यूरिंग विच ए प्रोसीडिंग टू सेट असाइड अ सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ए एंड बी दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, तो इसमें से एक ही ठीक होगा, तो बी इसमें आंसर है। द टाइम टेकन फॉर पेमेंट ऑफ सेल प्राइस शैल बी एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूड नहीं होगा। इन केस ऑफ एन ऑक्शन सेल द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद द ऑक्शन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, ये भी रॉन्ग है। तो अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो दे दिए हैं, तो उनमें से एक ठीक है, तो ऑब्वियसली चार ऑप्शन में से वही ठीक होगा, तो बी इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट इज 57, मैच करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट एंड लिमिटेशन पीरियड एज पर द स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो ए लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम अ टेनेंट कितने पीरियड में कर सकते हैं? 12 ईयर्स में। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 67 में। टू रिकवर मूवेबल प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड और पाउंड फ्रॉम अ डिपॉजिटरी और पॉनी, 3 ईयर्स में रिकवरी है। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 70 में। बाय मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर 30 ईयर्स में। कहाँ मेंशन है? 63A में। बाय अ मॉर्टगेजी फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज 12 ईयर्स 61A में मेंशन है ये। तो चारों ही ठीक हैं इसमें ये, which of the above pairs are correctly matched? 1 2 3 4 D is the answer. Next is 58. अब डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट है, फिर लिमिटेशन पीरियड है। अरियर्स ऑफ रेंट 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है ये मेंशन है आर्टिकल 52 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। ओके, फिर है फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी हाई कोर्ट टू सेम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट अपील है, सिंगल बेंच टू डिवीजन बेंच एलपीए फाइल है, तो टाइम पीरियड कितना है? 30 डेज का, तो ये ठीक है, मेंशन इन आर्टिकल 117। फिर है टू एस्टेब्लिश ए पीरियडिकली रिकरिंग राइट, कितना है ये? नॉट 5 ईयर, इट इज़ 3 ईयर्स, मेंशन इन आर्टिकल 104। फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड अ सूट अंडर समरी प्रोसीजर 10 डेज, ये ठीक है, मेंशन इन आर्टिकल 118। तो 1 2 एंड 4 इसमें ठीक है, तो सी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 59। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फिर से वही मैच करना है। पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट कहाँ मेंशन है? ये 66C में है, तो ये आईटी एक्ट से क्वेश्चन है अब ये, तो ये ठीक है जी। फिर पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी 66E है, ये भी ठीक है। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये जो है सेक्शन 67 है, ये भी ठीक है। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, ये है 66F नॉट G, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाता है, तो 1 2 3 इसमें करेक्टली पेयर है इसमें, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ आईटी एक्ट। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन द एपलेट ट्राइब्यूनल हैज द फॉलोइंग पावर्स, कौन कौन सी पावर है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनिंग समन पर्सन ऑन ओथ, इसकी पावर नहीं है। रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, यस। रिव्यूइंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, नो। तो 1 एंड 3 जो है इसमें करेक्ट है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ये ठीक है। 1 3 एंड 4 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो डी इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? 58 सब सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट। नेक्स्ट इज 61। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ आईटी एक्ट। In relation to appeal to appellate tribunal, no appeal lies from an order made by adjudicating officer with the consent of the parties, ये बिल्कुल ठीक है। Mention in section 57 subsection 2। फिर है there is no time limit fixed for final disposal of the appeal, ये wrong हो जाता है। कैसे? 6 months का टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है, मेंशन इन सबसेक्शन 6 और सेक्शन 57। फिर एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ नॉन कंसेंशुअल ऑर्डर मेड बाय एजुकेटिंग ऑफिसर में प्रेफर एन अपील, बिल्कुल ठीक है, ये सब सेक्शन 1 में है 57 में। फिर है अपील में भी फाइल्ड विद इन 45 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इम्प्यून ऑर्डर, ये भी बिल्कुल ठीक है, सब सेक्शन 3 में मेंशन है ये। तो 1 3 एंड 4 फिर से वही ठीक है, तो 1 3 4 डी इज द आंसर।
नेक्स्ट 62, द IT एक्ट इज इंटेंडेड टू ट्रैप साइबर टेररिस्ट या फिर प्रिवेंट साइबर क्राइम, to provide a legal recognition for transactions carried out by the means of electronic data interchange and other means of electronic communication, या फिर प्रोवाइड स्टेट विद द मीन्स ऑफ ट्रैक साइबर एक्टिविटी ऑफ ऑल पर्सन रॉन्ग। ये इस इन चारों में से ये प्रिवेंट साइबर क्राइम जो है वो ठीक रहेगा, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट 63, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट envisages that the private key and the public key are kept confidential by the subscriber, ये बिल्कुल ठीक है। ओनली यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, कोई ज़रूरी नहीं है। यूनिक टू द सब्सक्राइबर एंड कंस्टिट्यूट फंक्शनिंग की पेयर, कोई ज़रूरी नहीं है। कमर्शली ट्रांसफरेबल बाय द सब्सक्राइबर एट ऑल टाइम, नो, रॉन्ग है, तो ए ही इसमें आंसर है। नेक्स्ट 64, अंडर IT एक्ट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योर electronic record for a specific point of time to time of verification if any security procedure has been applied to the electronic record that specific point of time, ये बिल्कुल ठीक है। No physical access to the electronic record is granted to anyone, wrong। No internet access is permitted to the electronic record, no। It is sealed and kept under lock and key, no। A is mentioned where in section 14 of IT Act। Next is 65, an appeal may be filed from the order of appellate tribunal to High Court only on question of law arising out of such order, या फिर only if the case involves a substantial question of law of general importance, या फिर only on question of fact arising out of such order, या फिर on any question of fact or law arising out of such order। डी इसमें आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन है ये? इन सेक्शन 62 ऑफ IT एक्ट। और कितने दिन में करनी होती है अपील? 60 डेज का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट 66, अंडर सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, a person acquiring any immovable property shall be deemed to have dash notice of possession of any person on the property, या फिर notice of title if any of any person who is for time being in actual possession thereof, या फिर notice of any claim of person having adverse possession thereof, या फिर notice of all easement claims on the property। बी इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन बता ही दिया, एक्सप्लेनेशन 2। नेक्स्ट 67, consider the following examples in relation to what cannot be transferred। The chance of a relation obtaining a legacy on death of a kinsman, ये मेंशन सेक्शन 6 के क्लॉज ए में। द मेयर राइट टू सू, सेक्शन 6 के क्लॉज ई में मेंशन है। द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, ये भी क्लॉज ए में है। ईजमेंट अलोंग विद डोमिनेंट हेरिटेज, ये जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, इस पर कोई वो नहीं है। देखिए सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, 6 के क्लॉज सी में क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, तो अलोंग विद आएगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगी ईजमेंट डोमिनेंट हेरिटेज के, अपार्ट होगा तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें आंसर रहेगा। बी इज़ दी आंसर। नेक्स्ट 68, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल इन रिलेशन टू व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर TPA। वैसे वही सेक्शन 6 पूछ रहे हैं ये। स्टाइफंड अलाउड टू सिविल पेंशनर टू द गवर्नमेंट, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये सेक्शन 6 के क्लॉज जी में मेंशन है। पॉलिटिकल पेंशन ये भी नहीं हो सकते। स्टाइपेंड अलाउड टू नेवल पेंशनर, मिलिट्री पेंशनर नहीं हो सकते, क्लॉज जी में ही मेंशन है सब कुछ ये। तो 1 2 3 4 आर करेक्ट, ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट 69, consider the following statement in relation to person who are competent to transfer property under TPA। person must be competent to contract, बिल्कुल ठीक है जी ये। must be entitled to transferable property, yes। person must be authorized to dispose of the transfer property if property is not his own, ये भी ठीक है। पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, ये ओनली पर्सन लिखा हुआ है। कहाँ पर? सेक्शन 7 ऑफ TPA में। तो 1 2 3 इसमें आंसर रहेगा, डी इज़ द आंसर।
Next is 70. Where a transfer of property and interest therein is created absolutely in favor of any person, but a term of transfer directs that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. He shall be entitled to pay mutually agreed consideration to remove the restriction, या फिर he shall be bound to enjoy the interest. He shall be entitled to receive or dispose of such interest as if there was no direction. ये बिल्कुल ठीक है. Such transfer property is void ab initio. सी इसमें आंसर रहेगा. मेंशन इन सेक्शन 11 ऑफ टीपीए. नेक्स्ट इज 71. The right of a transferor to enforce a direction which limits the enjoyment of a property transferred absolutely to the transferee to a particular manner only for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of property is provided under सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 9 क्या है? ओरल ट्रांसफ़र. ये जो है सेक्शन 11 ही है जो हमने अभी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में. ठीक है ना. ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन रिपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड. रिपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड. 17 क्या है? डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन. ठीक है. 69 ए क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. Next is 72. If an interest vests in a transferee, it is divested on his death after he obtains possession, या फिर defeated by death of the transferee before he obtains possession, या फिर not defeated by death of the transferee before he obtains possession, transfer only after he obtains possession. सी इसमें आंसर है. कैसे? इसके लिए देखिए आप सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट, वहाँ पर लिखा हुआ है ये. Next is 73. Consider the following statement in context of transfer of property. In every transfer of immovable property made with intent to delay the creditors of the transferor, the rights of transfer in good faith and for consideration shall not be impaired. ये बिल्कुल ठीक है जी. The transfer shall be voidable at the option of any creditor so delayed. ये भी बिल्कुल ठीक है. Creditor so delayed can take possession of the property. ये नहीं मेंशन किया. Creditor so delayed can bring the property to sale without intervention of the court. ये भी मेंशन नहीं है. तो 1 and 2 मेंशन है कहाँ पे? सेक्शन 53 ऑफ दैट इज फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. ओके. तो 1 and 2 इसमें आंसर रहेगा. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 74. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिर से वही टीपीए. In case of tangible immovable property where there is a transfer of ownership in exchange for a price paid, तो क्या होगा? If the value of the property is 1000 rupees or less, a transfer may be made without registered instrument. Less than 100 लिखा हुआ है. ठीक है ना. फिर if the value of the property is 100 or more, the transfer can be made only by registered instrument. ये बिल्कुल ठीक है. Mention in section 54 of TPA, that is sale. If the value of the property is less than 100, the transfer may be made either by registered instrument or by delivery of the property. बिल्कुल ठीक है. Irrespective of the value of the property, the transfer may be made without a registered instrument. ये wrong है. तो 2 and 3 are correct. तो 2 and 3 ये रहा. B is the answer. Next 75. Consider the following statement in context of the rights of a mortgagee in possession under TPA. A mortgagee may spend much money as is necessary for supporting the mortgage's title to the property. बिल्कुल ठीक है ये. For the preservation of the mortgage property from forfeiture. ये भी बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट वाला है ये सेक्शन 72 में क्लॉज सी. एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन और सेल, ये तीनों जो है ये मेंशन है क्लॉज बी में इन सेक्शन 72. तो 1 2 3 4 सारी ठीक हैं. ये ए इसमें आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट इज 76. P1, a public servant demands from V1 next is 76. P1, a public servant demands from V1 rupees 50,000 as a bribe for granting a gun license. P1 complains to the Anti-Corruption Bureau ACB. ACB makes all arrangement to trap P1 and catches P1 red-handed taking a bribe of amount of rupees 50,000 from V1.
At a time of trial, V1 refused to support the prosecution and was declared hostile. There is no other witness to support the demand of the bribe, though there were witnesses to support the acceptance of the bribed amount. प्रूफ ऑफ डिमांड इज नॉट एसेंशियली रॉन्ग है, प्रूफ ऑफ डिमांड इज एसेंशियल। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो एक ही ठीक होगा, तो टू ठीक है। डिमांड कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय डायरेक्ट एविडेंस एंड नॉट बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या फिर कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इफ देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस। फोर ठीक है, तो फिर से वही 3 एंड 4 जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो 4 इसमें ठीक है। तो 2 and 4 आर करेक्ट, डी इज द आंसर। Next 77, whether a private person can also file a complaint again under the Prevention of Corruption Act, which among the following provides correct reasoning? The PC Act being a penal legislation, only state can file a complaint. ये wrong है, कोई भी फाइल कर सकता है complaint, है ना। There is no eligibility condition prescribed under the PC Act for a complaint, ये बिल्कुल ठीक है। Locus standi of the complainant is a concept unknown to the criminal jurisprudence unless a statute provides otherwise, बिल्कुल ठीक है। Prevention of Corruption Act prescribes that a private complaint can be filed, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 1 and 4 जो है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, तो इसमें से एक ही ठीक होगा, तो 4 ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 3 भी ठीक है, जब 4 ठीक है 4 के लिए ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 3 एंड 4 इसमें ठीक होगा, यहाँ पर ये 4 भी ऐड होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन थोड़े ठीक नहीं बनाए इन्होंने। नेक्स्ट 78, रीड फॉलोइंग पैसेज एंड गिव करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। An FIR was registered in 2005 by CBI in respect of disproportionate asset of V, an officer of IRS. The CBI sought sanction for prosecution under PC Act. The Finance Minister sought the advice of the Central Vigilance Commissioner, which recommended that sanction be granted. The Finance Minister was of the opinion that sanction should be accorded only if the CBI provides sufficient evidence. The Minister returned back the file again for fresh opinion of the CVC, but CVC reiterated the same opinion of the grant of sanction. Finance Minister thereafter referred the matter to Department of Personnel and Training for its opinion. मतलब यहाँ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सैंक्शन देना नहीं चाह रहा। The DOPT also suggested that the sanction should be accorded. Meanwhile, the finance minister change कर दिया, न्यू मिनिस्टर ग्रांट सैंक्शन हो गई। The sanction order was challenged by the accused. वो क्यों चैलेंज करेगा, उसके पास राइट ही नहीं है। चैलेंज तो आप किसी चीज़ को भी कर सकते हो, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। तो देर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन वेरियस अथॉरिटीज ऑन सैंक्शन। अब डिफरेंट कहाँ है, यहाँ CVC ने दे दिया, DOPT ने भी दे दिया। दिस इज द केस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट एंड अक्यूज शैल विन। नो, दिस इज नॉट अ केस ऑफ बेनिफिट डाउट एंड अक्यूज शैल स्टैंड ट्रायल, बिल्कुल ठीक है। मिनिस्टर वॉज बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ CVC एंड DOPT, नो, नॉट बाउंड। Once the file was written, this amounted to decline of sanction. No, it is wrong. तो B ही इसमें ठीक बनता है, एक B is the answer. Next 79, which of the following statement is not true regarding the timeline for recording of evidence of child and disposal of the case under the POCSO Act 2012? The evidence of the child shall be recorded within a period of 30 days of the special court taking cognizance of the offence. ये बिल्कुल ठीक है। ये सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 में मेंशन है। फिर स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट ए ट्रायल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ये भी ठीक है। सेक्शन 2 में मेंशन है, ये दोनों ही ठीक हो गए, बोथ आर करेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो एक्ट 2012। A special court may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving complaint of facts which constitute such offence, ये बिल्कुल ठीक है। Mention section 33 POCSO Act and this is subsection 1। फिर है special court must in addition to the punishment direct payment of such compensation as may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him or for immediate rehabilitation of such child, ये mention है in subsection 8 of section 33। तो दोनों ही ठीक हो गए, फिर से बोथ आर ट्रू, करेक्ट पूछा है यहाँ पे, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 81,
Consider the following statement regarding this recording of statement of a child by magistrate under POCSO Act. The provision contained in the first proviso of section 164(1) of CRPC shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused, shall apply in this case. वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाता है. Mention section 25 subsection 2 of POCSO Act. If the statement of child is being recorded under 164, the magistrate recording such statement shall record statement as spoken by the child. ये बिल्कुल ठीक है. Mention in subsection 1 of section 25. तो इसमें से अब पूछा है विच स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट कौन सी हुई? फिर वन ओनली ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 82. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स. फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी ट्रायल, स्टेट गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द जज ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट designate for each district court of session to be a special court to try the offences under the act. देखिए यहाँ पे लिखा विद ए जज, नॉट अ जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओनली. मेंशन सेक्शन 28 सब सेक्शन 1. ठीक है, ये रोंग हो जाता है. फिर यहाँ पे while trying an offence under this act, special court shall also try an offence with which the accused may under CRPC be charged at the same trial. ये हो सकता है. सब सेक्शन 2 में मेंशन है 28 में. तो बी इसमें करेक्ट है. बोथ और इंटर का तो ऑप्शन नहीं. बी इज द आंसर. Next is 83. Consider the following statement with respect to the designation of special courts for a trial of offence under POCSO Act. The district magistrate by notification designate court of session to be a special court to try offences under POCSO. क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है? नो, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ना, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. मैंने पहले क्वेश्चन में किया, अभी सेक्शन 28 में मेंशन है ये. फिर देयर शैल बी स्पेशल कोर्ट फॉर एवरी 2 डिस्ट्रिक्ट. नो, एवरी डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट. ठीक है ना, फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है. फिर द स्पेशल कोर्ट हैज़ जुडिक्शन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ पॉक्सो. ये ठीक है. सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि जो IT एक्ट वाले साइबर क्राइम वाले हैं वो भी जो है स्पेशल कोर्ट डील कर सकती है. तो ये ठीक है. तो 2 और 3 इसमें करेक्ट है. करेक्ट पूछा हुआ है, तो बी इसमें आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज 84. अंडर POCSO Act there are some provision which are opposite to section 102 of Indian Evidence Act. 102 क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट जो करता है. ठीक है ना. तो whether the statement is true or false, ट्रू फॉल्स डिपेंड ऑन केस. इट इज़ ट्रू. कैसे? इसमें प्रिजम्पशन है कि जो एक्यूज है उसने क्राइम किया है वो, जब तक वो उसको डिस्प्रूव ना कर ले. सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट देख सकते हैं इसके लिए. तो ए ये रहा. तो फिर ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए ओनली. ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 85. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू ऑब्लिगेशन अंडर पॉक्सो रूल्स. अभी जो है पॉक्सो रूल्स आए हैं 2020 में. तो क्या थे? एनी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन और कमिंग इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद देम इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ पीरियोडिक पुलिस वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड चेक फॉर ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु माइट इंटरेक्ट विद द चाइल्ड. बिल्कुल ठीक है. इसके रूल 4 में लिखा हुआ है. फिर है रेगुलर ट्रेनिंग टू सेंसिटाइज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन ऑन चाइल्ड एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन. रेगुलर नहीं, ये पीरियोडिक ट्रेनिंग लिखा हुआ है रूल 4 में ही. फिर है एडोलेसेंट गर्ल नीड नॉट रिक्वायर परमिशन ऑफ हर लीगल गार्जियन अंडर 3(4) ऑफ MTP एक्ट फॉर टर्मिनेटिंग हर प्रेगनेंसी अराइज आउट ऑफ कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये रॉन्ग है. ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है इसमें सेक्शन 3(4) में लिखा हुआ है कि लीगल गार्जियंस की परमिशन चाहिए अगर जो माइनर है. फिर एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. ये बिल्कुल ठीक है. ये रूल 3 के सब रूल 5 में मेंशन किया हुआ है. तो इसमें से फिर क्या ठीक हुआ? 1 और 4 ओनली. बट यहाँ पर अगर देखेंगे 2 में जो है ना रेगुलर ट्रेनिंग लिखी हुई है, तो पीरियोडिक और रेगुलर को अगर आप एक तरीके से ले तो वो ठीक हो सकता है. तो 1 to 4 हम इसमें आंसर लगा सकते हैं. बट मैं कहूँगा कि ऑप्शन जो है ठीक नहीं बनाए हुए.
C could be the answer. Next is 86. Assertion reason है. Assertion है an individual can be declared as terrorist by central government under section 35 UAPA UPA. ये ठीक है. Such person can be punished for imprisonment up to not less than 5 year की imprisonment है इसमें. तो ये रीज़न रॉन्ग हो जाता है. Assertion is correct. A is correct, R is incorrect, B is the answer. Next is 87. Assertion है a section 43E of UPA states that in a prosecution for offence under section 15, if it is proved that arms, explosive or any other substance specified in the said section were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such arm, explosive or other substance of similar nature were used in the commission of such offence, the court shall presume, unless contrary is shown, that the accused has committed such offence. Here the prosecution is required to establish that possession was conscious. अब देखिए यहाँ जब अब यहाँ पर प्रिजम्पशन की जब बात कर दी तो फिर प्रोसिक्यूशन को रिक्वायर्ड क्यों होगा कि वो कॉन्शियस एक्ट था उसका, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाता है. फिर यहाँ पे सारा ठीक लिख दिया, यहाँ तक फिर लास्ट में गलत कर दिया है ना. फिर रीज़न द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन केस ऑफ संजय दत्त वर्सेस CBI held that the meaning of first ingredient possession of any such arm is not disputed, even though the word possession is not preceded by any adjective like knowingly, yet it common ground that in the context of word possession must mean possession with the requisite mental element, that is conscious possession and not mere custody without the awareness of nature of such possession. ये ठीक है, तो A is incorrect, R is correct, C is the answer. Next is 88. Assertion है इसमें अंडर सेक्शन 15 कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट इज प्रोवाइडेड, ये ठीक है. एज टेररिस्ट एक्टिविटी इज वेरी डेंजरस क्राइम, सेक्शन 15 डज नॉट यूज मेंस रिया एलिमेंट. नहीं, देखिए सेक्शन 15 में लिखा हुआ है विद इंटेंट. इंटेंट जहाँ पर आ गया तो फिर मेंस रिया भी आ गया, तो ए करेक्ट, आर इनकरेक्ट, डी इज द आंसर. This is 89. Court may order forfeiture of proceeds of terrorism if the property is seized or attached on the ground that it constitutes proceeds of terrorism. ये बिल्कुल ठीक है, ये सेक्शन 26 ऑफ UAPA एक्ट में मेंशन है. फिर है द कोर्ट हैज़ मेड कन्फर्मेशन ऑर्डर, ये भी ठीक है जी. फिर द पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्रोसिक्यूटेड अंडर चैप्टर 4 and 6 ऑफ UAPA, ये रॉन्ग है. फिर इवन द प्रोसेसर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट प्रोसिक्यूटेड अंडर चैप्टर 4 and 6 ऑफ UAPA, ये बिल्कुल ठीक है. तो 3 and 4 कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो 4 इसमें ठीक है, तो 3 ऑब्वियसली रॉन्ग होगा. तो 1 to 4 इसमें आंसर हो जाता है. यहाँ पर एक करेक्ट पूछा हुआ है, तो B इज द आंसर. This is 90. Cyber terrorism is expressly made punishable under UAPA, IT एक्ट या फिर PMLA. देखिए IT एक्ट में सेक्शन 66F आप देखेंगे तो पनिशेबल है साइबर टेररिज्म के बारे में, ठीक है. तो बी इसमें आंसर हो जाएगा. This is 91. The NDPS Act does not expressly use the name of the following international convention treaties. सिंगल कन्वेंशन 1961 प्रोवाइड किया गया है. फिर प्रोटोकॉल ऑफ सिंगल कन्वेंशन 1961, प्रोटोकॉल कब आई थी? अडोप्टेड इन 1972, ये भी ठीक है. कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ऑफ 1971, ये भी है. हेग ओपियम कन्वेंशन नहीं है, तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट 92. इन द कंटेक्स्ट ऑफ CRPC एंड NDPS एक्ट, if there is an inconsistency between NDPS and CRPC, the provision of CRPC will to prevail या फिर NDPS will to prevail. तो इसमें मैं कहूँगा कि NDPS जो है स्पेशल लॉ है, तो ये प्रिवेल करेगा, तो बी इसमें आंसर रहेगा. दिस इज 93. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली 2020? इट ओवररूल्ड मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये रॉन्ग है. इन्फॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन नॉट बी द सेम पर्सन, ये बिल्कुल ठीक है. इट इज़ अ 3 जज बेंच जजमेंट, ये बिल्कुल ठीक है. इन्फॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन नॉट बी द सेम पर्सन,
तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो 2 और 3 इसमें करेक्ट है, तो बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 94, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज पर एनडीपीएस एक्ट। ओपियम डेरिवेटिव, ओपियम मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रग्स, ये कहाँ पर है सब? ये डेफिनेशन क्लॉज में है ये। इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 16। कैनाबिस हेम्प मीन्स चरस एंड गांजा, ये मेंशन है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। फिर एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी, ये सेक्शन 6 में प्रोवाइड किया गया, 7 में नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, नॉट करेक्टली मैच्ड। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और परमिट कंट्रोल रेगुलेट सेक्शन 10 है, तो सी इसमें आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज 95, रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या है? सेक्शन 32A वाज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द अमेंडमेंट इन एनडीपीएस एक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, 1989 की अमेंडमेंट है। दिस प्रोविजन बार्स द एग्जीक्यूटिव अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू यूज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ रिमिशन अंडर सीआरपीसी, ये ठीक है। फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 32A कैन नॉट बी गिवन एज इट विल वायलेट आर्टिकल 20 का 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 20 का 3 क्या है? ये है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसको कैसे वायलेट करेगा? यहाँ पर ये इट आना चाहिए था, इट विल वायलेट आर्टिकल 14, 21 इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको वायलेट करता है ना, तो फिर ये जो है रॉन्ग हो जाता है, इसमें 1 ठीक रहेगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, ए इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 96, द इशू ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और malicious information or vexatious proceeding under NDPS Act cannot be punished under NDPS but under IPC can be punished under NDPS Act अंडर सेक्शन 58, और उसमें 6 महीने की पनिशमेंट और 1000 रुपये का फाइन प्रोवाइड है, तो बी इज़ दी आंसर। 97, स्टेटमेंट 1 है, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट एनी पर्सन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स may not be obliged to allow taking of his biological samples, ये बिल्कुल ठीक है। दिस इज मेंशन इन सेक्शन 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। फिर एनी पर्सन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन और अ चाइल्ड फॉर एनी ऑफेंस punishable imprisonment for period not less than 7 years must be obliged to allow taking of biological samples, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो है स्टेटमेंट 1 जो है 2 की क्या बन गई? एक्सेप्शन हो गया, तो बोथ आर इनकरेक्ट, नो 1 इज इनकरेक्ट, नो करेक्ट 2 करेक्ट रीजनिंग ऑफ 2, या फिर स्टेटमेंट 2 इज एन एक्सेप्शन ऑफ स्टेटमेंट 1, डी इसमें आंसर हो जाएगा। This is 98. Which of the following statement is correct relating to the assertion? On 2/9/2022, central government has notified motor vehicle non-transport vehicle visiting India rules 2022. देखिए रूल से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, 3 या 4 क्वेश्चन हो गए हैं रूल से। द रूल्स प्रोवाइड फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्टर्ड इन इंडिया, नहीं, ये देखिए विजिटिंग इंडिया है, तो मतलब ये रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है इधर, तो ये रॉन्ग हो गया। The rules prohibit motor vehicle registered in any country other than India to transport local passenger and goods within territory of India, ये बिल्कुल ठीक है। फिर as per rules the document must be carried in the vehicle during the duration of stay in India, includes insurance policy registration certificate only, no, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उनकी जो वीज़ा और एंट्री परमिट एंड ऑल दैट सब कुछ रखना पड़ता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। इफ़ द डॉक्यूमेंट आर इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश देन ऑथराइज इंग्लिश ट्रांसलेशन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी शैल बी कैरिड अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 4 इसमें ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है यहाँ पे, तो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज 99. The intending couple under the Surrogacy Regulation Act 2021 is eligible to have a child through surrogacy if the intending couple has a medical indication necessitating gestational surrogacy, ये बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 4 में प्रोवाइड किया गया है ये, और उसके क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में मेंशन है ये।
फिर है इंटेंडिंग कपल आर मैरिड और इन लिविंग रिलेशनशिप, ये रॉन्ग है, ओनली मैरिड होना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप को अलाउड नहीं है। अब कपल की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज एच में। इंटेंडिंग कपल की दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज आर में, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। और कपल में जो लिखा हुआ है ना इसमें कि वो मैरिड होना चाहिए, लिव इन को अलाउड नहीं है। फिर है द इंटेंडिंग कपल आर बिटवीन द एज ऑफ 23 to 50 इन केस ऑफ फीमेल एंड 26 to 55 इन केस ऑफ मेल, ये बिल्कुल ठीक है। फिर से वही सेक्शन 4 में मेंशन है ये, फिर से वही क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी में, और फिर अगेन अनदर सब क्लॉज 1 में। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये जो सब क्लॉज बना दी ना डॉट ये स्मॉल रोमन्स को लिख के, इनको ये जो है सब सेक्शन बनाना चाहिए था। आई डोंट नो कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है इस एक्ट में। फिर है द इंटेंडिंग कपल हैव नॉट हैड एनी सर्वाइविंग चाइल्ड बायोलॉजिकली और थ्रू अडॉप्शन और थ्रू सरोगेसी अर्लियर हु इज़ नॉट फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड, ये बिल्कुल ठीक है। ये इसी सब क्लॉज सी के 1 के प्रोवाइजो में मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें से ठीक क्या हुआ फिर, ए सी एंड डी, तो ए सी डी ये रहा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 100, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एज नल एंड वॉइड अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इफ the transfer document should have been executed after the coming into force of the act. This is correct mention in section 23 of this act. The transfer document should have been executed either before or after. No, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, एक ही ठीक होगी, तो ए ठीक है, बी रॉन्ग हो गया। फिर है द डॉक्यूमेंट शुड क्रिएट एन ऑब्लिगेशन ऑन ट्रांसफर टू मेंटेन द ट्रांसफरर, ये ठीक है। फिर वेदर अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड डिड नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन, ये रॉन्ग हो जाएगा, दोनों फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, सी और डी, तो सी ठीक है इसमें। तो ए और सी जो है वो ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर, तो बी एंड डी जो है वो नॉट करेक्ट है, तो बी एंड डी ये रहा, डी इज़ द आंसर। So friends, here we have discussed all the questions of paper 1 of preliminary exam paper of Jammu and Kashmir Prosecution Officer 2022। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे, तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।